This is audio revision of the topic investigation of chapter due diligence, investigation, and forensic accounting. What does investigation mean? It means a systematic and in depth examination or inquiry to establish a fact or to evaluate specific situation. ठीक है, तो ये एक प्लान्ड मैनर में बनाया हुआ, सिस्टमैटिक मतलब हो गया प्लान्ड मैनर में, कुछ ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बनाना, ताकि और कि इन डेप्थ एग्जामिनेशन कर सके या इंक्वायरी कर सके, ताकि जो एक्चुअली हुआ है हम उसको प्रूव कर सकें और उस पर एक जजमेंट तक पहुंच पाए। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब क्या हो गया? इट मीन्स सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन और इंक्वायरी टू establish a fact or to evaluate specific situation. What is the difference between audit and investigation? पहला तो ऑब्जेक्टिव्स। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव है कि वो एक फैक्ट को इस्टेब्लिश करना चाहता है, मतलब जो हो चुका उसको प्रूव करना चाहता है, और टू असेस अ पर्टिकुलर सिचुएशन। Whereas in audit, it wants to verify whether financial statement display a true and fair view of state of affairs of the entity. ऑडिट बस इतना वेरीफाई करना चाहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्प्ले कर रहा है वो वैसा है या नहीं, वो ट्रू है या नहीं। देन कम स्कोप। स्कोप में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टिगेशन में इट इज़ गवर्न बाई स्टैट्यूट और इट मे बी नॉन स्टैट्यूटरी, whereas in audit scope is wide and in case of statutory audit scope is governed by law. Then periodicity. इन्वेस्टिगेशन का कोई लिमिटेड नहीं है टाइम फ्रेम, इट इज़ नॉट लिमिटेड टाइम, not limited by rigid time frame, whereas in audit it is quarterly, half yearly or yearly. Nature. Investigation का requires detailed examination, whereas an audit involves test checking or sampling. Then comes inherent limitation. तो investigation का कोई inherent limitation नहीं है, whereas audit suffers from inherent limitation. Then is evidence. Evidence क्या? Investigation seeks conclusive evidence, whereas audit is concerned with prima facie evidence. अब है appointment. तो investigation appointed by even third party, whereas for audit it is appointed by owner or shareholders. Reporting कैसा? The investigation is reported to person on whose behalf investigation is carried out, and audit is reported to owners of business entity. क्या क्या steps हो गया? There are 5 steps. First is determination of objectives and establishment of scope of investigation. Second is formulation of investigation program. Third is collection of evidence. Fourth is analysis and interpretation of findings. लास्ट इज रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स। तो पहला क्या हो गया? सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव और स्कोप हो गया, फिर दूसरा में फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाना होगा, थर्ड में एविडेंस कलेक्ट करो, फोर्थ में एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो फाइंडिंग्स को, एंड लास्ट में रिपोर्ट कर दो फाइंडिंग्स के बारे में। Now, what are the important issues to be kept in mind by investigator while preparing his report? Report should not contain anything which is irrelevant. Every word should be properly used to minimize possibility of different interpretation. Third is basis and assumptions made should be explicitly stated. ये क्या बेस है, क्या assumption है, वो मतलब अच्छे से explain और अच्छे से state करना चाहिए। Report should clearly spell out nature and objective of assignment accepted. रिपोर्ट जो है वो क्लियरली नेचर और ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेन कर रहा हो, स्पेल आउट कर रहा हो। फिर फिफ्थ पॉइंट हो गया, रिपोर्ट शुड बी मेड इन पैराग्राफ फॉर्म विथ हेडिंग्स और पैराग्राफ्स। रिपोर्ट जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए विथ प्रॉपर हेडिंग्स, फॉर हर पैराग्राफ का प्रॉपर हेडिंग्स के साथ। लास्ट इज ओपिनियन ऑफ इन्वेस्टिगेटर शुड अपीयर इन फाइनल पैराग्राफ ऑफ रिपोर्ट। ओपिनियन जो है इन्वेस्टिगेटर का वो अपीयर होना चाहिए लास्ट में फाइनल पैराग्राफ, रिपोर्ट का फाइनल पैराग्राफ में। तो हो गया क्या क्या रिपोर्ट बनाने के टाइम क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी फालतू बकवास नहीं होना चाहिए, नो शुड नॉट कंटेन एनीथिंग इररिलेवेंट। फिर
मिनिमाइज़ करो इस पॉसिबिलिटी का फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। ऐसा लिखो कि कोई और कुछ और ना समझ सके। ये नहीं कि हम लिख रहे हैं प्लांट, तो वो प्लांट, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो प्लांट एंड मशीनरी वाला प्लांट है या फिर पेड़ पौधा वाला प्लांट। एक्सप्लेन मतलब इट शुड बी सो क्लियर कि उसमें कोई पॉसिबिलिटी ना रहे कि हम कुछ और भी समझ सकें। फिर बेसिस एंड assumptions मेड शुड बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। जो भी बेसिस और assumptions है वो अच्छे से स्टेट किया हुआ रहना चाहिए। फिर उसमें क्लियरली नेचर और ऑब्जेक्टिव मेंशन होना चाहिए, स्पेल आउट होना चाहिए। पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए सब कुछ, और हर पैराग्राफ का प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, और उसका फाइनल ओपिनियन फाइनल पैराग्राफ में, रिपोर्ट के फाइनल पैराग्राफ में रहना चाहिए। What are the special issues in investigations? First is whether an investigator is required to undertake 100% verification approach or whether he can adopt selective verification. It depends on circumstances of case under investigation. In case of cash defalcated by cashier, examine all cash voucher. In case of arriving at profitability, verify on selective basis. तो क्या हो गया, ये देखना होगा कि वेदर इन्वेस्टिगेटर को सारा कुछ वेरीफाई करना चाहिए, कौन सा अप्रोच यूज़ करना चाहिए, सारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस या फिर सेलेक्टिव वेरिफिकेशन का प्रोसेस। देन कम्स वेदर द इन्वेस्टिगेटर कैन पुट रिलायंस ऑन ऑलरेडी ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या इन्वेस्टिगेटर जो है उनको रिलाई करना चाहिए ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे, जो उसके पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, क्या उस पर वो रिलाई कर सकता है या नहीं। इन्वेस्टिगेटर इज एंटाइटल्ड टू पुट reliance on audited financial statement unless he finds that audit is done very casually. However, if investigation is launched due to some doubt in audited financial statement, then there is no question of reliance arises. ठीक है, तो कब इन्वेस्टिगेटर को रिलाई करना चाहिए? अगर इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि वो कैजुअली नहीं, सिंसियरली बना हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तब वो रिलाई कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। पर अगर वो उसको लगता है कि वो कैजुअली प्रिपेयर किया हुआ है तो नहीं करो। या फिर अगर इन्वेस्टिगेशन इसलिए हुआ ही है कि क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाउट था, तब तो कोई चांस ही नहीं है कि वो उसको यूज़ करे, उस पर रिलाई करे। देन वेदर एन इन्वेस्टिगेटर नेसेसरली रिक्वायर्स असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। इन्वेस्टिगेटर को एक्सपर्ट का ज़रूरत है या नहीं। इन्वेस्टिगेटर मे ऑब्टेन व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स आफ्टर ऑब्टेनिंग रिटन कंसेंट ऑफ हिज क्लाइंट। ठीक है, वो ओपिनियन ले सकता है, व्यूज़ ले सकता है एक्सपर्ट का, लेकिन क्लाइंट के कंसेंट के बाद। वेदर टू रिटेन वर्किंग पेपर्स और नॉट। इन्वेस्टिगेशन शुड रिटेन फुल नोट्स ऑफ वर्क कैरिड आउट एंड ऑल वर्किंग पेपर्स इन हिज फाइल। सारा वर्किंग पेपर, सारा नोट, सब कुछ होना चाहिए फाइल में। What are the special aspects in connection with business investigations? What are the factors to be considered while studying economic and financial position of business? क्या क्या हो गया? सबसे पहले adequacy of fixed and working capital. Then second is trend of sales and profits in future. Third is whether profit expected to maintain in future would yield adequate return on capital employed. Last is whether business is operating at 100% capacity. क्या क्या हो गया? फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल का एडुकेसी, सेल और प्रॉफिट का फ्यूचर में ट्रेंड, फिर प्रॉफिट जो प्रॉफिट है उसको फ्यूचर में मेंटेन करना है या नहीं, मेंटेन होगा या नहीं, और वो जो है एडुकेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लाएगा या नहीं। लास्ट इज वेदर बिजनेस इज ऑपरेटिंग एट 100% कैपेसिटी। जो बिजनेस है वो अपने 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है या नहीं। देन व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन असेसिंग फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर। तो फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर के लिए क्या क्या देखना होगा? ट्रेंड। सबसे पहले तो ट्रेंड, पास्ट ट्रेंड ऑफ सेल्स हैव बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली और फ्लक्चुएटिंग। पास्ट ट्रेंड देख लो सेल्स का, वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है या फिर फ्लक्चुएट कर रहा है। देन मार्केटेबिलिटी, पॉसिबिलिटी टू एक्सटेंड सेल्स इन न्यू मार्केट। सेल्स को क्या पॉसिबिलिटी है सेल्स को न्यू मार्केट की तरफ ले जाने में। देन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑन सेल्स।
Political and economic considerations, effect of government policies and economic trends on sales. Last is competition, effect of competition and companies share in total trade. कंपटीशन क्या हो गया? इफेक्ट ऑफ कंपटीशन एंड कंपनीज शेयर इन टोटल ट्रेड. What are the types of investigation? Statutory. First is investigation under Companies Act 2013. फिर है नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन. इसमें क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन इज ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर. ठीक है, जो पार्टनर आने वाला है उसके बिहाफ में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है. फिर इन्वेस्टिगेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनी में के शेयर वैल्यूएशन के लिए. फिर इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक प्रपोजिंग टू एडवांस लोन टू अ कंपनी. ये इन्वेस्टिगेशन बैंक की तरफ से हो रहा है उस कंपनी के लिए जिसमें वो लोन एडवांस करने वाला है. फिर इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फर्म प्रपोजिंग टू बाई अ बिजनेस. इन्वेस्टिगेशन जो है उस इंडिविजुअल के बिहाफ पे जो फर्म को कोई बिजनेस को ख़रीदना चाहता है. देन इन्वेस्टिगेशन इन कनेक्शन विथ रिव्यू ऑफ प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट. इन्वेस्टिगेशन क्या हो गया? उसके लिए प्रॉफिट या फाइनेंशियल फोरकास्ट के लिए. फिर लास्ट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स. तो दो तरह का हो गया इन्वेस्टिगेशन, एक तो स्टैट्यूटरी, दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी. स्टैट्यूटरी में सिर्फ एक ही है, इन्वेस्टिगेशन अंडर कंपनीज एक्ट. अब इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है? तो फर्स्ट हो गया कि एसर्टेन हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म. देन स्टडी प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. थर्ड is scrutiny of profitability record of firm's business. Then examination of asset and liability position. उसके बाद position of orders in hand and quality of clientele. Position and terms of loan finance. Third last is study composition and quality of key personnel employed by firm. Second last, reasons for offer of admission to a new partner should be ascertained. Last is manner of computation of goodwill on admission and retirement should be ascertained. तो पहला हो गया हिस्ट्री और ग्रोथ फर्म का देख लो, असरटेन कर लो. फिर पार्टनरशिप डीड का प्रोविजन स्टडी करो. प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड स्क्रूटिनाइज करो. एग्जामिनेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी पोजीशन. फिर पोजीशन ऑफ ऑर्डर्स इन हैंड एंड क्वालिटी ऑफ क्लाइंटेल, कैसा क्लाइंट है उसके पास. फिर पोजीशन एंड टर्म्स ऑफ लोन फाइनेंस, कैसा लोन है, क्या टर्म्स है और किस पोजीशन पे है. स्टडी कॉम्पोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ की पर्सनल एम्प्लॉयड बाय फर्म, कैसा उसके यहाँ के काम कर रहे लोग कैसे हैं, किस तरह का क्वालिटी है, कैसा कॉम्पोजिशन है. फिर रीज़न फॉर ऑफर ऑफ एडमिशन टू अ न्यू पार्टनर शुड बी असर्टेन, कि न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर क्यों मिला है, क्यों ऑफ़र किया गया है. एंड लास्ट इज मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन रिटायरमेंट शुड बी असर्टेन्ड, कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा एडमिशन के टाइम पे और रिटायरमेंट के टाइम पे, उसका मैनर उसको असर्टेन करना. देन कम्स इन्वेस्टिगेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनीज. There are two main methods for valuation of equity shares. First is net worth basis and second is yield basis. Net worth basis क्या हुआ? Value is determined on the basis of net worth of company. Amount of net worth is divided by number of equity shares to arrive at value for one share. AFM में ये पढ़े हैं, वही हो गया. नेट वर्थ जो है डिवाइड हुआ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से टू अराइव एट वैल्यू फॉर वन शेयर. देन यील्ड बेसिस क्या हुआ? एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 to 7 years is computed. Then value of business is calculated by capitalizing average profit at reasonable rate of interest. Now, next topic, investigation on behalf of bank or financial institution proposing to loan to a company. Investigating accountant shall collect information on following points. सबसे पहले purpose for which loan is required. Then schedule of repayment of loan submitted by borrower. Third is financial standing and reputation of directors and officers of the company. Fourth is whether company is authorized by memorandum or articles of association to borrow money.
The last is history of growth and development of company and its performance during past 5 years. तो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट वो किस क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए? सबसे पहले तो किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, कैसे पेमेंट रीपेमेंट करेंगे, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट, फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है और प्रिपरेशन क्या है डायरेक्टर्स का, फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में बोरो करना अलाउड है, ऑथराइज्ड है या नहीं। लास्ट इज हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपनी एंड इट्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग पास्ट 5 years. To investigate profitability of business or judging accuracy of repayment schedule furnished by borrower as well as value of security in the form of assets of business already possessed and those which will be created out of loan, investigating accountant shall take following steps. First is prepare condensed income statement from profit and loss for past 5 years. Then compute mentioned ratios separately. Sales to inventory is held, sales to fixed assets, current ratio, quick ratio, equity to long-term loans, and return on capital employed. Third is enter breakup of annual sales product wise to show their trend. तो प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट बनाओ फॉर पास्ट 5 years, कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट। फिर रेशियोज़ को कंप्यूट करो सेपरेटली, ब्रेकअप ऑफ एनुअल सेल्स और प्रोडक्ट वाइज टू शो देयर ट्रेंड, एनुअल सेल्स प्रोडक्ट वाइज टू शो देयर ट्रेंड। Investigation on behalf of an individual or firm proposing to buy a business. In case of proprietary concern or partnership, reasons for sale of business, length of lease under which premises are held, unexpired period of patents, age of present managerial staff and prospects of their continuity in service. Last is valuation of goodwill. जब एक पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरी कंसर्न खरीदना हो तब किस किस रीज़न क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं? सबसे पहले तो रीज़न क्या है सेल का, फिर कितने टाइम तक लीज़ पे रहा था, लेंथ ऑफ लीज अंडर विच प्रीमाइसेस आर हेल्ड एंड अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ पेटेंट्स, फिर मैनेजरियल स्टाफ का एज क्या हो रहा है, वो कितने साल तक कंटिन्यू करेंगे, और लास्ट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब अगर मेरे को बिज़नेस बाई करना है, इस समय प्रोपराइटी या पार्टनरशिप था, अब अगर बिज़नेस बाई करना है तब क्या क्या देखेंगे, क्या क्या इन्वेस्टिगेट करना होगा? ऑथराइज्ड एंड इशूड कैपिटल, uncalled liability on shares, particulars of dividend paid in past and arrears of dividend. Fourth is mortgage on asset created in register of charges. Fifth is price at which shares are offered. क्या क्या पॉइंट्स हो गया, रिपीटिंग अगेन लर्निंग के लिए। AUPMP, ए क्या हो गया, ऑथराइज्ड एंड इशूड कैपिटल। यू से हो गया अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स। पी से हो गया पर्टिकुलर्स ऑफ डिविडेंड पेड इन पास्ट एंड अरियर्स ऑफ डिविडेंड। फिर हो गया मॉर्गेज ऑन एसेट्स क्रिएटेड इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। लास्ट हो गया प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड। नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेस्टिगेशन इन कनेक्शन विथ रिव्यू ऑफ प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट. There are many investigations which involve an examination of future profits. Like future profit reports can be required for purchase of business. ठीक है, पर बिजनेस परचेज करने के लिए फ्यूचर प्रॉफिट का रिपोर्ट रिक्वायर्ड होगा बाय बैंक्स एंड नेक्स्ट पॉइंट बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर अप्रेजल ऑफ लोन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय बोरोवर्स. ये हो गया लाइक प्रोजेक्ट कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट लोन का फॉर अप्रेजल ऑफ लोन एप्लीकेशन जो सबमिट किया है बोरोवर. देन कम्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड. कितने टाइप्स के फ्रॉड होते हैं? सबसे पहले तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, और फिर लास्ट हो गया करप्शन और ब्राइबरी. Some situations in which fraud can occur along with investigation procedure. Cash receipts. Cash receipt fraud may be done in following form. कैश रिसीट का फ्रॉड कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो
लार्जर कैश डिस्काउंट दिखा रहा है, जितना मिला नहीं है, जितना अलाउड नहीं हुआ है उससे ज़्यादा का कैश डिस्काउंट दिखा रहा है। फिर फिक्टिशियस क्रेडिट कस्टमर अकाउंट में एडजस्ट किया जा रहा है, एडजस्टिंग फिक्टिशियस क्रेडिट इन कस्टमर अकाउंट, एडजस्टिंग कैश सेल एज क्रेडिट सेल, जो कैश सेल मिला है उसको क्रेडिट सेल के जैसे एडजस्ट कर रहा है। देन राइटिंग ऑफ गुड डेट एज बैड एंड इरिकवरेबल, गुड डेट को बैड और इरिकवरेबल दिखा रहा है, दिखा के राइट ऑफ कर रहा है। देन अंडरकास्टिंग रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, क्या क्या हो गया? सबसे पहले हो गया शोइंग लार्जर डिस्काउंट्स, देन एडजस्टिंग fictitious credit in customer account, adjusting cash sale as credit sales, writing of good debt as bad and irrecoverable, then undercasting receipt side of cash book. Now, what are the verification of cash receipt? How can we verify cash receipts? कार्बन कॉपीज ऑफ रिसीट्स मार्क डुप्लीकेट शुड बी स्क्रूटनाइज्ड, जो भी कार्बन कॉपी है उसको डुप्लीकेट मार्क किया हुआ है उसको स्क्रूटनाइज करना चाहिए। कैश सेल्स शुड बी वाउच्ड इन डिटेल, कैश सेल्स को डिटेल में वाउच करो। रिकवरीज फ्रॉम कस्टमर्स एंड कैश डिस्काउंट शुड बी चेक्ड, जो रिकवरी हुआ जो कस्टमर से और जो कैश डिस्काउंट मिला है उसको चेक करो। देन ऑल विड्रॉल्स फ्रॉम द बैंक शुड बी चेक्ड, क्या क्या हो गया? कार्बन कॉपीज़ का डुप्लीकेसी स्क्रूटनाइज, कैश सेल्स शुड बी चेक्ड, रिकवरी फ्रॉम कस्टमर एंड कैश डिस्काउंट शुड बी चेक्ड, एंड लास्ट इज ऑल विथड्रॉल्स फ्रॉम बैंक शुड बी चेक्ड। देन इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट, कैश पेमेंट में फ्रॉड कैसे होगा? मेकिंग डबल पेमेंट ऑफ इनवॉइस और पेइंग फॉल्स इनवॉइस। सेकेंड, paying personal expenses out of business by falsifying details. Third is falsely adjusting refund in customer account. Last is wrong excess totaling of fate sheets. क्या क्या हो गया? डबल पेमेंट करवा दिया या फिर फॉल्स इनवॉइस से पे करवाया, पर्सनल एक्सपेंसेस का भी पेमेंट बिजनेस से करवाया फॉल्स डिटेल्स के थ्रू, फिर फॉल्स एडजस्टमेंट रिफंड किया कस्टमर अकाउंट में, और लास्ट में रॉन्ग एक्सेस ऑफ टोटलिंग ऑफ वेट शीट्स। देन कम्स वेरिफिकेशन ऑफ कैश पेमेंट्स, ऑल द एविडेंस एज रिगार्ड कैश पेमेंट शुड बी केयरफुली स्क्रूटनाइज्ड, सारा एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट को केयरफुली स्क्रूटनाइज करो। ऑल पेमेंट्स बाय बियरर चेक शुड बी एग्जामिन्ड, ऑल विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक शुड बी चेक्ड फ्रॉम एंट्रीज इन बैंक पासबुक, जो भी विथड्रॉल हुआ है बैंक से उसको चेक करो बैंक पासबुक के एंट्री से। देन सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ वेजेस शुड बी रिव्यूड। नेक्स्ट इज फ्रॉड्स थ्रू सप्लायर्स लेजर, इसमें कैसे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं? फ्रॉड्स थ्रू सप्लायर्स लेजर मे बी डन इन फॉलोइंग फॉर्म। फर्स्ट इज एडजस्टिंग डुप्लीकेट इनवॉइसेस एज परचेजेस in suppliers account, suppressing credit notes issued by suppliers. Third is withdrawing amounts unclaimed by supplier. Fourth is accepting purchase invoices at higher than market prices. Then comes verification of balances in supplier's ledger. Verify purchase journal with goods inward and supplier's invoice to confirm that supplier's account is credited correctly. वेरीफाई कर लो परचेज जर्नल को गुड्स इनवर्ट से और सप्लायर का इन्वॉइस से ये कंफर्म करने के लिए कि सप्लायर का अकाउंट सही से क्रेडिट हुआ है या नहीं। देन रिक्वेस्ट ऑल सप्लायर्स टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स, सारे सप्लायर से अपने स्टेटमेंट को फर्निश करने के लिए रिक्वेस्ट करो। देन आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटी ऑफ कल्यूशन विद सप्लायर्स, कोई भी कल्यूजन हुआ है सप्लायर से तो वो पॉसिबिलिटी आइडेंटिफाई करो। देन कस्टमर्स लेजर में फ्रॉड्स थ्रू कस्टमर्स लेजर मे बी डन इन फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट इज टीमिंग एंड लैडिंग, टीमिंग एंड लैडिंग मेथड ये तो बहुत पुराना है, आईपीसीसी में भी इंटर में भी पढ़ा है। टीमिंग एंड लैडिंग मेथड हो गया मिस अप्रोप्रिएटिंग अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम अ कस्टमर एंड क्रेडिटिंग his account only when amount is subsequently collected from another customer. जब दूसरा देगा तब पहले के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। क्या हो गया फिर से? मिस अप्रोप्रिएटिंग अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम अ कस्टमर
and crediting his account only when amount is subsequently collected from another customer. The next point, misappropriating amount collected from customer and subsequently adjusting his account by crediting amount as a rebate. ठीक है, मिसअप्रोप्रिएशन हुआ अमाउंट का जो कस्टमर से कलेक्ट किया और सब्सिक्वेंटली उसको एडजस्ट करो एज अ रीबेट. देन क्रेडिटिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर to account of another customer and subsequently withdrawing amount wrongly credited. ठीक है, सबसे पहले तो क्रेडिट कर दो जो अमाउंट कस्टमर से रिसीव किया वो दूसरे कस्टमर के अकाउंट में और सब्सिक्वेंटली विड्रॉ कर लो wrongly credited amount. Then verification of balances in customer's ledger. Special attention should be paid to amount adjusted for goods returned or differences in price. Special attention किस पे देना चाहिए? अब जो अमाउंट पे हुआ है गुड्स रिटर्न करने पे या फिर जो डिफरेंस इन प्राइस है उस पर. देन ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ कस्टमर फॉर बैलेंस स्टैंडिंग इन देयर अकाउंट्स. कस्टमर से कंफर्म कर लो जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उसके अकाउंट्स में. फिर है इन्वेंट्री फ्रॉड. अब इन्वेंट्री फ्रॉड कैसे हो सकता है? इन्वेंट्री फ्रॉड्स मे बी डन इन फॉलोइंग फॉर्म. First is employees may remove goods from premises. Second is theft of goods may be concealed by writing them off as damaged goods. Then inventories records may be manipulated by employees who have committed. Last is inflating quantities issued for production. कैसे कैसे हो गया? या तो एम्प्लॉय जो है गुड्स को हटा दिया प्रेमाइसेस से या फिर जो चोरी हुआ उसको कंसील कर दिया गया, उसको राइट ऑफ कर दिया गया एज डैमेज्ड गुड्स. या फिर इन्वेंट्री का रिकॉर्ड जो है मैनिपुलेट कर दिया वो एम्प्लॉय जो ये किया था. एम्प्लॉय हु हैव कमिटेड दिस फ्रॉड. देन इन्फ्लेटिंग क्वांटिटीज़ इशूड फॉर प्रोडक्शन. इन्फ्लेट कर दिया क्वांटिटीज़ जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ हुआ था. 10 लगा 100 बता दिया. देन वेरिफिकेशन प्रोसीजर फॉर डिफाल्केशन ऑफ इन्वेंट्री. Entire system of receipts, storage and dispatch of all goods should be reviewed. पूरा सिस्टम जो है रिसीट का, स्टोरेज का, डिस्पैच का, गुड्स का रिव्यू किया गया. Then establish items and quantities of inventory defalcated by physical verification. Establish कर दो items, establish कर लो items और quantity inventory का जो डिफाल्केट हुआ फिजिकल वेरिफिकेशन से. थर्ड इज चेक वेदर मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन वॉज एक्सेसिव. ये चेक करो कि जो मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ हुआ वो ज़्यादा तो नहीं हुआ. व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड? देयर आर सेवरल इंडिकेशंस ऑफ पॉसिबल फ्रॉड्स. फर्स्ट इज डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग इनकरेक्ट, डिलेड और नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो डिस्क्रिपेंसी है इंक्लूडिंग इन जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं इनकरेक्ट, डिलेड, नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट्स, वो सारा सेवरल इंडिकेशन. पहला हो गया डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. कैसा डिस्क्रिपेंसी? इनकरेक्ट, डिलेड या नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट्स. सेकेंड इज कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ मिसिंग एविडेंस इंक्लूडिंग मिसिंग एंड ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स. कॉन्फ्लिक्टिंग या मिसिंग एविडेंस इंक्लूडिंग मिसिंग एंड ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स. कॉन्फ्लिक्टिंग या मिसिंग. कौन सा एविडेंस? कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस या फिर मिसिंग एविडेंस इंक्लूडिंग मिसिंग और ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स. एविडेंस भी और डॉक्यूमेंट्स भी. देन थर्ड इज अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज सच एज डिनायल ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, अनयूजुअल डिलेज इन प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, अनविलिंगनेस टू एड्रेस डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल एक्सेट्रा. तो अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्स है जैसे कि डिनायल ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, अनयूजुअल डिले इन प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, अनविलिंगनेस टू एड्रेस डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल. क्या क्या हो गया अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्स? कि जो रिकॉर्ड्स है उसका एक्सेस नहीं दे रहे हैं, अनयूजुअल डिले कर रहे हैं इन प्रोवाइडिंग जो रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन है वो देने में, या फिर नहीं देना चाह रहे हैं अनविलिंगनेस टू एड्रेस डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल. जो इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी उसको एड्रेस नहीं करना चाहते हैं.
Last is other indications such as frequent changes in accounting estimates etc. Other indications क्या हो गया? Such as frequent changes in accounting estimates. बार बार अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंजेस लाना. लास्ट टॉपिक इज फ्रॉड डायमंड. 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड. व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड? फर्स्ट हो गया इंसेंटिव, देन अपॉर्चुनिटी, थर्ड रैशनलाइजेशन एंड लास्ट इज कैपेबिलिटी. इंसेंटिव क्या हो गया? आई वॉन्ट टू और आई हैव टू कमिट फ्रॉड. अपॉर्चुनिटी क्या हो गया? देर इज़ अ वीकनेस इन सिस्टम दैट द राइट पर्सन कुड एक्सप्लॉइट, देन फ्रॉड इज़ पॉसिबल. ठीक है, अपॉर्चुनिटी मतलब कहीं पे ऐसा फ्रॉड कर पाने का चांसेस है तो कर लिया. गेट खुला था, दिख गया, चोरी कर लिया. देन रैशनलाइजेशन. आई हैव कन्विंस्ड माई सेल्फ दैट दिस फ्रॉडलेंट बिहेवियर इज़ वर्थ द रिस्क. ठीक है, खुद को ये समझा लिया कि ये फ्रॉडलेंट बिहेवियर रिस्क is worth the risk. Then capability. I have necessary traits and abilities to be right person to pull it off. मेरे में वो trait और ability है. So here we end investigation. Hope you like it. Please like, share and subscribe.